بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اوپر اگر مثال ہم اپنی لیں، آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو ذرا دیکھیے غور سے، ہم ایک اچھے بیٹے تو بن گئے اور میرا باپ میری بہت تعریف کرتا ہے، میں نے اپنے باپ کی نظر میں اپنی عزت تو بنا لی، لیکن آپ ذرا نظر دوڑائیں، ہم ایک اچھے بیٹے تو بن گئے لیکن ایک اچھے باپ نہیں بن سکے۔ اگر ہم ایک اچھے باپ بن گئے اور میری اولاد میری بہت تعریف کرتی ہے تو آپ نظر ڈالیں، ہم ایک اچھے باپ تو بن گئے لیکن ایک اچھے شوہر نہیں بن سکے۔ اگر ہم ایک اچھے شوہر بن گئے تو ایک اچھے تاجر نہیں بن سکے، ایک اچھے تاجر بن گئے تو ایک اچھے حاکم وقت نہیں بن سکے۔ ہم ایک اچھے حاکم وقت تو بن گئے لیکن ایک اچھے حکیم نہیں بن سکے۔ ہم ایک اچھے حکیم تو بن گئے لیکن ہم ایک اچھے مصلح نہیں بن سکے۔ ہم ایک اچھے مصلح تو بن گئے لیکن ایک اچھے مبلغ اور دائی نہیں بن سکے۔ ہم ایک اچھے مبلغ اور دائی تو بن گئے لیکن ایک اچھے جج نہیں بن سکے۔ وہ کون سی شخصیت ہے جو ایک اچھا بیٹا بن کر دکھایا ہو؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو ایک اچھا شوہر بن کر دکھایا ہو؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو ایک اچھا باپ بن کر دکھایا ہو؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو ایک اچھا تاجر بن کر دکھایا ہو؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو ایک اچھا جج بن کر دکھایا ہو؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو ایک اچھا حاکم وقت بن کر دکھایا ہو؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو ایک اچھا حکیم بن کر بھی ثابت کیا ہو؟ اگر زندگی کے ان ہزاروں پہلوؤں پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو تاریخ، سیرت اور ان زمین و آسمان کی نظریں اور اس کی زبان یہی چیختی ہوئی اور اعلان کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر ایسی شخصیت کو اگر تلاش کرنا ہے اور اگر کوئی مکمل ہے تو وہ ہستی ہے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر 63 سال تک کی اس زندگی کو بکھری ہوئی اور پھیلی ہوئی اس زندگی کو، ایک سمندر کی طرح پھیلی ہوئی زندگی کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کر دیا، ایک چھوٹے سے گڑھے میں لوٹے میں بند کرتے ہوئے فرمایا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، دنیا والوں، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی ایک نمونہ ہے اور ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ اب کہنے کی ضرورت نہیں، جیسے نبی کھاتے تھے ویسے کھاؤ، جیسے نبی چلتے تھے ویسے چلو، جیسے نبی دوڑتے تھے ویسے دوڑو، جیسے نبی نماز پڑھتے تھے ویسے پڑھو، جیسے نبی روزہ رکھتے تھے ویسے رکھو، جیسے نبی سوتے تھے ویسے سو، نبی جیسے نماز پڑھتے تھے ویسے پڑھو، نبی جیسے شادی کرتے تھے اور نبی نے کی اور نبی نے کر کے دکھائی۔ یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت ہی شارٹ کٹ میں کہہ دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، دنیا والوں، ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی پوری زندگی بہترین آئیڈیل اور ایک بہترین نمونہ بنا دیا۔ نظر ڈالیے، پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹ سے، میں آپ کو ایک اچھا بیٹا ہونے کی حیثیت دکھا رہا ہوں۔ ابھی پیدا ہوئے، ابھی چند دن ہی گزارے تھے، عرب کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کر دیا کرتی تھی اور شہر سے چھوڑ کر دیہات بھیج دیا کرتی تھی۔ قبیلے بنو سعد سے کچھ عورتیں مکہ میں آتی ہیں بچے تلاش کر رہی۔ آمینہ کا اپنا بیان ہے اور پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی اور
काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की और अल्लामा इब्न हिशाम की सीरतुन नबी पढ़िए, देखिए क्या मंजर है। आमीना जो नबी की माँ है वो कहती है, हर औरत मेरे पास से गुजरी, कबीले बनु साद से जितनी भी औरतें आई वो सब सारी औरतें मेरे पास से गुजरी, हर औरत ने मेरे बच्चे को लिया, लेकिन अपने देहात में ले जाने के लिए तैयार भी हो गई, दूध पिलाने के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन दौराने गुफ्तगू उसने ये सवाल कर लिया, ऐ आमीना मुझे जरा इस बच्चे के बाप से तो मुलाकात करवाओ, मुझे इस बच्चे के बाप से तो भी मिलना है, मुझे इसके बच्चे के बाप से भी मिलना है। आमीना कहती, मैंने ये जवाब दे दिया कि उस बच्चे का बाप तो इस दुनिया में नहीं है, इस बच्चे का बाप तो इस बच्चे के पैदा होने के 2 महीने पहले इस दुनिया से जा चुका, इंतकाल कर चुका। जिस औरत ने जब ये सुना कि इस बच्चे का बाप नहीं है, तो फिर वो कहने लगी, ऐ आमीना फिर मैं तेरे बेटे को दूध पिलाऊं तो कैसे पिलाऊं, तेरे बेटे को अगर तेरे बेटे को अगर पाल पोस कर बड़ा करूं तो मुझे भी तो अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, अच्छी उजरत मिलना चाहिए। अगर इस बच्चे का बाप ही इस दुनिया में नहीं है तो तू क्या मुझे मुआवजा दे देगी। जिस औरत ने ये सुना कि इस बच्चे का बाप नहीं है, रख दिया मेरी गोद में। आमीना का बयान है आगे का। आमीना कहती है, हलीमा बीबी मेरे पास से गुजरी, जब उसने भी ये सुना कि इस बच्चे का बाप नहीं है तो उसने भी मेरी गोद में उस बच्चे को उठाकर रख दिया और फिर सारी औरतें मक्के में बच्चे तलाश करने लगी, सारी औरतें मक्के में बच्चे तलाश करने लगी, हलीमा भी ढूंढने लगी। सारी औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को पूरे मक्का में कोई बच्चा नहीं मिला। सारी औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई पूरे मक्का में बच्चा नहीं मिला। हलीमा लौट के आई, शर्मिंदगी और से बचने के लिए कि मेरी सहेलियां मुझ पे ताने न मारे कि देखो खाली हाथ आई थी और देखो इसको कुछ नहीं मिला, कोई बच्चा नहीं मिला, खाली हाथ वापस जा रही है, चलो इस बच्चे ही को ले लेते हैं, शायद अल्लाह उसमें कोई बरकत दे दे। फिर हलीमा कहती है, मैं ना चाहते हुए भी आमीना से वो बच्चा मांग लिया, ऐ आमीना लाओ वो बच्चा मुझे दो, और आमीना ने वो बच्चा मुझे दे दिया। आगे का बयान है, हलीमा सादिया कहती है, जैसे ही मैं उस बच्चे को लेकर अपनी सवारी पर बैठी, जैसे ही मैं उस बच्चे को लेकर अपनी सवारी पर बैठी, मेरी सवारी हवा से बातें करने लगी, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं। आई थी वो गाड़ी तो बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी की तरह थी, लेकिन जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को जब मैंने गोद में लिया तो मेरी सवारी राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलने लगी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। हलीमा की सहेलियां पीछे से चीखती हैं, अय हलीमा जरा रुक जा, अय अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, अय बिन्तो अबू ज़ुऐब जरा रुक जा। साथ में आई तो छोड़ के क्यों जा रही है? जब तेरी रास्ते में ऊँटनी बैठ जाती थी तो हम तेरा साथ देते थे, लेकिन अब तो तू मेरा साथ भी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये वही सवारी है जिस पर तू आई और ये रास्ते में बैठ जाया करती थी? हलीमा पीछे मुड़कर कहती है, हाँ ये वही सवारी है, पता नहीं क्या हो गया इस सवारी को, ये हवा से बातें कैसे कर रही है, इतनी तेज क्यों चलती है, रुकने का नाम क्यों नहीं लेती है, इस सवारी को क्या हो गया। फिर काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी नकल करते हैं कि हलीमा चीखती हुई कहती है, बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में ही कोई बरकत नजर आती है, मुझे तो इस बच्चे का ही कोई चमत्कार नजर आता है। फिर हलीमा ने जिस तरीके से उस बच्चे को पाला, हलीमा की अपनी बेटी
पेट भर कर दूध पी सके उतना दूध उस हलीमा की अपनी बकरी नहीं देती थी। हलीमा को तशवीश थी कि अब तो मेरे 2 बच्चे हो गए, एक मेरी बेटी और दूसरे मोहम्मद। मेरी बकरी मेरी बेटी के पेट भरने का दूध नहीं देती है, अब मोहम्मद का भी पेट भरना है, कैसे भरूं? बर्तन उठाती है और पढ़िए अर्रहीकुल मक्तूब, बर्तन हाथ में लेती है और जैसे हलीमा ने बकरी के थनों से दूध निकालना शुरू किया तो बकरी के खुश्क थनों से ऐसे दूध निकलना शुरू हुआ जैसे सावन धातों की बारिश हो रही हो। बर्तन पे बर्तन भरने लगे और पानी की तरह दूध गिरने लगे। हलीमा का शौहर चीख पड़ा, हलीमा तू किसी बादशाहत रूह को लेकर आई है, किसी नेक बच्चे को लेकर आई है, किसी बादशाहत रूह को लेकर आई है। इस बच्चे के मुबारक कदम पड़ते ही इसने हमारे घर में बरकतों के दरवाजे खोल दिए। यहाँ से बचपना शुरू होता है नबी अकरम का। और पढ़िए अर्रहीकुल मक्तूब में 6 साल और काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक 4 साल के थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला और हलीमा के पास ही थे जब, और हलीमा की बेटी और कबीले के कुछ लोग बकरियां चराने के लिए गए थे तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को भी अपने साथ लेकर गए थे। और वहां जो शक्के सदर का जो मामला पेश आया, एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और कहने लगा तुम्हारा नाम क्या है? आपने अपने अंदाज में जवाब दिया मोहम्मद। उठाकर ले गया, पहाड़ के दामन में ले जाकर लिटा देता है, सीने को चीर देता है, दिल को निकालता है। और अल्लाह के नबी बयान देते हैं कि उस फरिश्ते ने मेरे दिल से एक खराब किस्म का लोथड़ा उसको निकाला और फेंक दिया। याद रखिए वो लोथड़ा हर इंसान में होता है। आजकल वो मेडिकल सर्जन जो हार्ट का सर्जरी करते हैं उनसे पूछिएगा, वो लोथड़ा सब के अंदर होता है। और उसी लोथड़े के अंदर कीना, कपट, गुमान, दुश्मनी सब उसी लोथड़े के अंदर होती है। चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बुग़्ज़, ज़िना, दुश्मनी से दूर रखना था, इसीलिए उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। ये तहकीक है काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह। वो मेरे भाइयों, उस फरिश्ते ने वो खराब किस्म का लोथड़ा निकाला और फेंक दिया। और इस फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि जमजम का पानी लेकर आओ। जमजम का पानी लाया गया और जमजम के पानी से नबी अकरम के दिल को धोया गया। और धोने के बाद दिल को उसी तरह सीने में रखकर ऐसे हाथ फेर दिया। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला खड़े होकर चलने लगे। इधर इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया। ये बच्चे भागे, अपनी बकरियां चप्पल वैसे ही छोड़ते हुए भागे हलीमा के पास। हलीमा रोटी पकाते हुए बैठी है। हलीमा ने पीछे मुड़कर देखा, बच्चों को परेशान। बच्चों क्या हुआ? बेटो क्या हुआ? इतने परेशान कैसे? और मोहम्मद कहाँ है? मैं देख रही हूँ कि मोहम्मद को तुम अपने साथ लेकर गए थे और जब तुम वापस आए तो मोहम्मद नागारत गायब। इन बच्चों ने बैक ज़बान कहा, इन बच्चों ने बैक ज़बान कहा, कुतिला मोहम्मद, माँ मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद तो मार डाले गए। हलीमा सादिया बयान देती है कि जब मैंने ये सुना तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने सोचा कि अब मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, अब मैं आमीना को क्या जवाब दूंगी। मैं दौड़ती हुई गई और इधर झाड़ी हटाई, उधर झाड़ी हटा कर देखी तो मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नहीं मिले। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो एक पहाड़ी के दामन से मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को अपनी तरफ आते हुए देखा। मैंने झट से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को अपने सीने से लगाया और पूछा, बेटे क्या हुआ? आपने अपनी पूरी बात बताई
माँ कोई था मुझे यहाँ से ले गया, पहाड़ी के दामन में ले गया। फिर उसने मेरे सीने को चाक किया, दिल को निकाला, एक खराब किस्म का लोथड़ा तो निकाल कर फेंक दिया। फिर इसने मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया और वापस मेरे सीने में रख दिया। हलीमा भी कहती हैं, बेटे जब वो तुम्हारा सीना चीरा तो तुम्हें क्या मालूम था? कहा कि जब दिल धो रहा था तो तुम्हें मालूम था? कहा मुझे सब होश था। हलीमा कहती है, मुझे इस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। ये नई नई चीजें बताने लगा और ऐसे ही मामले इसके साथ पेश आने लगे। मैं फिक्र में आ गई, मैं डर गई कि इस बच्चे को कोई खतरा ना हो जाए। तो मैं उस बच्चे को हलीमा कहती है, मैं उस बच्चे को वापस आमीना के पास देकर आ गई और कह कर आई कि आमीना मेरा दिल तो नहीं चाहता है मैं इस बच्चे को तुम्हें वापस दूं, मेरा दिल तो नहीं चाहता है। इस बच्चे ने तो खैर और बरकत के दरवाजे मेरे घर में खोल दिए, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बताता है, ऐसे ऐसे चमत्कार बताता है कि मुझे डर है अगर तेरे बेटे को अगर कुछ हो गया और तूने मुझसे बेटा तलब कर लिया और मैं तुम्हें बेटा न दे पाऊँ तो मैं क्या करूंगी? अब तुम अपना बेटा संभालो। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।